Good morning, everyone. So, in last term on June class, we have completed exercise 18. Okay. Now, all these question has been solved. Some are left, which are given in homework. Now, we will learn about proportions. So, what is proportions? Before this proportion, we have learned about the ratios. That is A ratio B, which become A upon B. Okay. So, now what about proportions? When two ratios are equal, means if A ratio B is equal to C ratio D, then we can say that all these four numbers are in proportions. Understand? So we have to learn it. What are the proportions? For four numbers A, B, C, D are said to be in proportions if A ratio B is equal to C ratio D. You can see there two ratios. A ratio B is equal to, this is equal to sign describe us that these four numbers are in proportions. So A ratio B is equal to C ratio D means A, B, C, D are in proportion, and we write this as A ratio B is proportional to, this four dots is the sign of proportions. Instead of equal sign we will put the proportional signs. A ratio B is proportional to C ratio D. The meaning of both cases are same. Either you can write A ratio B is equal to C ratio D, or you can write A ratio B is proportional to C ratio D. By these two meaning we can say that the four numbers are in proportions. Clear? What are the some more properties? A, B, C, D are, before learning this property, I am telling you the examples of the proportionality. Look, 4 ratio 6. We will solve it. How much? 4 by 6 simplified by 2, 2 2s are, and 2 3s are. Understand? So it become 2 ratio 3. Clear? Now we will take 12 ratio 18. Again it become 12 upon 18. Okay? We will simplify it by 6. 6 2s are, 6 3s are, and we get 2 ratio 3. You can see that this 4 ratio 6 give us the simplified value 2 ratio 3. Also this 12 ratio 8 give us the simplified value 2 ratio 3. It means both have the simplified value same. We can say that 4 ratio 6 is equal to 12 ratio 18. Why equal to? Because the value of this ratios and this ratios both are same. So now we can say that 4 ratio 6 is proportional to, this 4 dots is the sign of proportions, to 12 ratio 18. Okay, this is the meaning of the proportionality. Some more cases are there. A, B, C, D are respectively known as first, second, third and fourth terms. Okay, so all these four terms are what? First term, second term, third and fourth. A and D are called the extreme. Extreme is जो एकदम लास्ट में हो, एक इस तरफ हो और एक इस तरफ हो, बोथ एंड पर जो सबसे लास्ट वाले टर्म हो, यानी इस एंड पर जो सबसे किनारे है वो और इस एंड पर जो सबसे किनारे है वो, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम एंड. सो ए एंड डी आर द एक्सट्रीम. ओके, एंड दीज टू आर कॉल्ड द मिडिल. Understand? Okay, so these A and D are called the extreme terms, and the middle terms are what? B and C. And there is a equations for or relation. You can say that the relation between these extreme term and middle term. We can say that the product of the middle term is equal to the product of the extreme term. Okay, the product between these two terms are equal. So product of mean is equal to product of extreme. What is the meaning of this? The mean term are B and C. So we multiply here, B multiply C is equal to A multiply D. This relation is derived by simplifying them. Look here, A ratio B is proportional to C ratio D, means
ए अपॉन बी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल मीन्स इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, थोड़ा मैं आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ कि ए अपॉन बी कब लिखते हैं, जब ए रेशियो बी होता है तो उसका जो मीनिंग होता है फ्रैक्शन में वो ए अपॉन बी होता है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है, इक्वल का साइन। इस इक्वल साइन के लिए ही हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन यूज करते हैं। और सी रेशियो डी मीन सी अपॉन डी। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इधर किसका मल्टीप्लीकेशन आएगा, ए इंटू डी का। देखिए ये ए इंटू डी हो गया, और इधर क्या जाएगा आपका बी इंटू सी। तो ए डी क्या है, देखिए ए और डी एक्सट्रीम टर्म है ना, ये आपके एक्सट्रीम टर्म है। और ये बी सी क्या है, ये देखिए ये दोनों मिडिल वाले टर्म क्या है, ये मिडिल टर्म। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू, ये एक्सट्रीम है। आप एक्सट्रीम इधर लिख सकते हो, मीन इधर लिख सकते हो, या मीन इधर लिख दो एक्सट्रीम इधर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो इस तरह से ये फार्मूला आपका डिराइव हुआ है, जो यहाँ आपने पढ़ लिया होगा। और डी इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। लास्ट टर्म जो होता है डी, इसको हम फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है ना, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, शो दैट 30, 40, 45, 60 आर इन प्रोपोर्शंस। ठीक, हमें इसको शो करना है कि ये प्रोपोर्शंस में। तो कैसे करेंगे हम, इस ऑर्डर को आप ध्यान से देखिए। ठीक, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले दोनों का रेशियोज आप फाइंड करेंगे। 30:40 कितना आएगा, 3:4 आएगा। फिर जो थर्ड और फोर्थ है उनका रेशियो हमने फाइंड किया 45:60, ये भी 3:4 आ गया। तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट टू का रेशियो जो है 30 और 40 का, वो 3:4, और सेकंड थर्ड और फोर्थ का भी 3:4, और दोनों इक्वल आ गए। ठीक, 3:4, 3:4। तो हम क्या कह सकते हैं कि 30:40 इज इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं हम लोग 45:60। तो इस इक्वल टू को हटाकर हम किसका साइन लगा देंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा देंगे। क्लियर, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। शो 36, 49, 6, 7 आर नॉट इन प्रोपोर्शंस। इनको दिखाना है कि ये प्रोपोर्शंस में नहीं है। तो हम पहले दोनों का रेशियोज फाइंड करते हैं 36 और 49। तो ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि कोई भी कॉमन नंबर इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। फिर हम थर्ड फोर्थ को ले रहे हैं 6, 7, ये भी ऐसे रहेगा। ठीक, तो हमने क्या देखा कि इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक, नॉट इक्वल टू। तो जब नॉट इक्वल आएगा दोनों रेशियोज, तो हम क्या लिख देंगे, हेंस दीज टर्म्स आर नॉट इन प्रोपोर्शंस। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, एक आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। तो प्रोपोर्शनलिटी ऑलरेडी गिवन है आपके पास, 2:9 इज प्रोपोर्शनल टू x:27। क्लियर, सो 2:9 बिकम व्हाट, 2/9 इज इक्वल टू x:27 बिकम x/27। क्रॉस कर सकते हैं आप, तो हमने कर लिया 27 को यहाँ भेज दिया यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ x। तो 2 इंटू 27/9, 9 1 जा, 9 3 जा, 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। इसी केस को आप प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से भी आप लगा सकते थे, तब भी यही चीज मिलती है हमको। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो जो फार्मूला है वो इसी सिस्टम से डिराइव किया गया है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन 6 में देखिए, आपको जो पूछा गया, देखिए बीच वाले क्वेश्चन आप लगा लेंगे। ठीक है ना, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ यहाँ तक आप लगा लेंगे। 6 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल्स। तो फर्स्ट 3 दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोपोर्शनल दिए गए हैं, फोर्थ यहाँ पे नहीं है, तो फोर्थ को आप x मान लो। तो देखिए हमने क्या लिखा है, लेट फोर्थ प्रोपोर्शन बी x। क्लियर, तो अब हमारे पास क्या हो गया, 8, 36, 6, और यहाँ देखिए फोर्थ की प्लेस पर क्या आ गया, x आ गया, आर इन प्रोपोर्शन। ठीक, तो अगर ये प्रोपोर्शंस में है तो पहले दूसरे का रेशियो जो है हमारा 8:36 प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, 6 और x के, 6:x। क्लियर, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 8/36 इज इक्वल टू, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर हम इक्वल का साइन लगाएंगे, 6/x। ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, x को हम यहाँ ले जाएंगे तो 8 यहाँ नीचे आ जाएगा और 36 यहाँ आ जाएगा। हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 36/8। ठीक, तो 4 2 जा, 4 9 जा, ये हो गया। फिर 2 1 जा, ठीक, और 2 3 जा, तो 9 3 जा 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 27। मीन्स हमारा जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो कितना आ गया, 27। अंडरस्टैंड। तो यहाँ तक अभी आप लगाएंगे, क्वेश्चन 6 तक हमने आपको समझा दिया है।
और इसके जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो दोनों आप लगा लीजिएगा। इसके आगे ऑनवर्ड हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। थैंक यू क्लास।